चलो सभी ब्लैक बोर्ड देखो। Ma'am, your video is off. To prove angle of incident is equal to angle of reflection. Activity मैम आप म्यूट हैं। मैम यू आर to show laws of reflection of light. Second law, the angle of incident is equal to angle of reflection. For showing a mirror is taken. This is mirror. And two cylindrical, hollow cylindrical is placed in front of mirror by making some angle. Suppose that is 30 degree. A normal is drawn and the angle is made, angle present between the normal and the cylinder is 30 degree. It is the first cylinder. And through torch, light is sent in this cylinder. Light is passing through this cylinder, strike with the mirror. Another hollow cylinder is placed in another side, and the angle between the hollow cylinder and the normal should be 30 degree also. Arrangement of two cylinder. First cylinder arranged in such a way that angle between the normal and cylinder should be 30 degree. And the second cylinder, second one is also placed in such a manner that angle between the second cylinder and the normal should be 30 degree. And then the light is allowed to pass through the first cylinder. When the light is allowed to pass through first cylinder, it strikes to the mirror, and after striking the mirror, it goes to the second cylinder. You will see it will go to the second cylinder, but because the angle is same, 30 degree and 30 degree. Now angle is changed. 45 and 45. Angle is kept 45 degree, and then this side also 45 degree. You will see when again the light is allowed to pass through the first cylinder, after striking to the mirror, it will pass through the second cylinder. Again, angle is changed, and now it is kept 60 degree. Both angles should be 60 degree. After changing direction of the cylinder, after changing the angle, light is allowed to pass through the first cylinder. Again, after striking the mirror, light pass through the second cylinder. This shows the angle of incidence is equal to angle of reflection.
It is the second law of reflection of light. Huh? Listen once again very carefully. एक मिरर ले लेते हैं और मिरर के सामने क्या करते हैं कि दो सिलेंडर को प्लेस करते हैं, होल्ड करते हैं, किसी तरह से होल्डिंग हो, आइदर यूजिंग मोल्डिंग क्ले और डो है, आटा का गीला करके फ्लोर को वाटर में डाल करके उसका स्लरी बना करके मतलब डो बना करके, या फिर किसी तरह से मोल्डिंग क्ले, घर में खेलने वाला जो तुम लोग के पास मोल्डिंग क्ले है उसको ले करके, ये जो हॉलो सिलेंडर खरीदने का जरूरत नहीं है, सभी के पास जो है ना, ये पुराना वाला जो 6-4-5 वाला, देखो ये जीके है, 6 क्लास का जीके वाला, ये इस पेज को ऐसे फोल्ड करके ये बन गया ना सिलेंडर, देखो ये इस पेज Yes, को ma'am. पुराने Yes. वाले जो है जीके का ये है 6 क्लास का, ये सिलेंडर बन गया ना, तो 2 पेज है तो Yes. 2 पेज का 2 सिलेंडर बन जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए या फिर क्या चाहिए, मोल्डिंग क्ले। मोल्डिंग क्ले से फर्स्ट सिलेंडर को फिक्स कर देते हैं। कैसे फिक्स करना है, एक नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और फिर पहले 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो और उसी एंगल के पार्ट पे इसको फर्स्ट सिलेंडर को फिक्स करना है। फिर इस साइड भी नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करके और दूसरे सिलेंडर को फिक्स कर दो मोल्डिंग क्ले से। ये कर सकते हो, कल तो तुम लोग किए, तो सभी के पास छोटा मिरर है, उसके सामने ये सिलेंडर बना करके देख सकते हो। अब क्या करना है, सभी के घर टॉर्च है, टॉर्च से लाइट को क्या करना है, थ्रो करना है थ्रू दिस सिलेंडर। जैसे ही you will see as soon as the light goes through this cylinder, it will strike to the mirror, and after bouncing with the mirror, it will come to the second cylinder. जैसे ही मिरर लाइट डालोगे तो ये मिरर को बाउंस करेगा, स्ट्राइक करके और दूसरे सिलेंडर में पास करेगा। और ये डिफरेंट टाइम 3-4 टाइम 40 डिग्री कर दो, 42 डिग्री, 45 डिग्री, डिफरेंट एंगल लो 50 डिग्री करके, और ये एक्सपेरिमेंट करो, देखोगे क्या कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, ये कर सकते हो, 2 फ्रेंड का जरूरत नहीं है, अकेले कर सकते हो, मोल्डिंग क्ले से लेकर के या फिर तुम डो बना करके और डो से फिक्स करके, या मोल्डिंग क्ले नहीं, घर के आसपास जैसे अपराजिता दिखाई थी, अपराजिता के घर के पास क्ले है तो क्ले ही लेकर के थोड़ा उसको ले करके और वो फिक्स करके मिरर रख दो। जैसे ये सरफेस है, ये मेरा टेबल है, यहाँ ये टेबल, इस पे मिरर रख दिया, मिरर को ऐसे करना है, ऐसे रखना है, हाँ? मैंने आपका ये वाला एक्टिविटी एक बार ट्राई भी किया है। हाँ, ऐसे रख देना है और इसी के सामने लाइन ड्रॉ करना है 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 45 डिग्री, और उस पे सिलेंडर रखना है, और फिर तुम लोग देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक्टिविटी कर लो, बुक में दिया है, सभी को समझ में आया होगा? हाँ, यस मैम। इसको करना है और ये बेटर होगा करके इसको अच्छे से, जैसे तुम लोग वीडियो सेंड किए थे, तुम लोग वीडियो बनाए थे, उसी तरह से वीडियो बना करके सेंड करना मेरे पर्सनल पे, हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? अब नाउ इमेज फॉर्मेशन, image formation by plane mirror. The laws of reflection help us to understand the formation of image of an
object by mirror. How the image formed by the mirror, it can be better understand by using laws of reflection of light. Formation of image by plane mirror. अब image formed by plane mirror. Suppose that it is plane mirror. AB is plane mirror. ये AB plane mirror है ना? And it is the point is, and from point is light is reflected to the mirror, and after bouncing the mirror it will goes to the another direction. Again light coming out from the S1 and it is going to another direction. For making image, all of you are looking that there is no meeting with the reflected light. Huh? Whatever light that is striking to the, it is following on the just making 90 degree angle. ये देखो किसी ने कल पूछा था ना कि 90 डिग्री एंगल से जाएगा लाइन तो क्या होगा, तो वो इट विल रिट्रेस द पाथ वन. ये आया 90 डिग्री एंगल से आया और मिरर को स्ट्राइक किया और फिर इसी पाथ पे बैक हो गया. देखते हो अब जो है इस लाइन को, ये कोई मिरर ये कटिंग नहीं हो रहा है. देयर इज नो actual intersecting of the reflected light ray is taking place. जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एक दूसरे को कट तो नहीं कर रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे जानेंगे? तो फॉर नोइंग द प्लेस ऑफ इमेज वी ड्रॉ बैक द रिफ्लेक्टेड लाइट. ये जो लाइट जो है रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये लाइट जो है ये इसको बैक डायरेक्शन में इमेजिनरी हम लोग खुद बना रहे हैं इसलिए इमेजिनरी है. और इस लाइन को जब भी कोई इमेजिनरी लाइन हो तो उसको जो ब्रोकन लाइन से शो करते हैं. इमेजिनरी लाइन को कैसे लाइन से, स्ट्रेट नहीं ब्रोकन लाइन से ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तुम्हारा देखो ये लाइट रे इसको बैक में मिलाया, फिर ये लाइट रे देखो इसको बैक में, ये दिस वन, दिस वन. तो all of you can see कि this line, reflected line is meeting at point S2. It is the place where the image is formed by the plane mirror. If the object is kept at S1, then image will form just behind the mirror at the S2. आगे बढ़े मैम. इसको एक और बार बता दीजिए. एक और बार मैम ठीक मैम जो इसमें पॉइंट एस से 90 डिग्री एंगल से जो आ रहा है एंगल. अच्छा फिर देखिए once again, ये it is mirror. Painted side of the mirror. And object this is reflecting side. मतलब जहाँ पेंटिंग नहीं है वो साइड कैसा है, रिफ्लेक्टिंग साइड. अब नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस हियर. ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करते हैं S1.
ये एस या S1 कुछ भी नाम रख लो, 0 A B कुछ भी, एंड light ray is started reflecting from the mirror. यहाँ कोई भी लाइट, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो हम यहाँ खड़े हैं ना, खड़े हैं तो कैसे विजिबल है, क्यों विजिबल है बोलो, कैसे विजिबल है? मैम आप सेकंड, पे लाइट पड़ रही है मैम बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अब बताओ, एक सेकंड, अभी हम कंप्लीट विजिबल है पहले के जैसा, विजिबल है? नो मैम नहीं, नो मैम क्यों? अब थोड़ा थोड़ा विजिबल है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं हम। और अगर लाइट एकदम कंप्लीट, अभी नाइट होता, कर्टेन अच्छे से नहीं किए, देखो, हाँ ये देखो एकदम फेस मेरा दिख रहा है नो कंप्लीट? मैम नो मैम नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना? एकदम डार्क। हाँ डार्क दिख रहा। अब दिख रहा है, दिख रहा है? यस मैम यस मैम तो ये क्यों दिख रहा है, अभी क्यों दिखने लगा? मैम बिकॉज ऑफ लाइट लाइट, मैम बिकॉज ऑफ लाइट। हाँ देखिए, बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट ये जो है ना, इस साइड में लाइट आ रहा है और वो मेरे फेस से, और जितना चीज, जितना ऑब्जेक्ट सामने दिखाई दे रहा है, उन सभी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, उस सरफेस को बाउंस कर रहा है। इवन कि मेरे बिंदी देखे, बिंदी भी आप लोग देख रहे हैं कितना छोटा है, उससे भी लाइट आ रहा है, उस पे बाउंस करके, और डिफरेंट डायरेक्शन में उसका स्प्लिट, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। और वो लाइट कुछ ये सामने लैपटॉप, मैम बैक्टीरिया से भी मैम रिफ्लेक्शन हाँ होता है। उसके कैमरा में भी जा रहा है, लैपटॉप के कैमरा में भी लाइट जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा लाइट मैम मेरे पर बैक्टीरिया में भी मैम रिफ्लेक्शन होता है। उदित क्या बोल रहे हो? मैम बैक्टीरिया में भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। हाँ अभी बाद में पूछना, अभी जो बता रहे हैं उसको सुनो पहले। ऐसा नहीं केवल बुक का याद करके और क्या रियल होता है वो समझ ही में नहीं आए, बाद में बताएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहले सुन, समझो पहले कि लाइट जो है, लाइट ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रहा है, आ रहा है, और हर एक सरफेस से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाउंस कर रहा है, और वो दूसरे डायरेक्शन में चला जा रहा है, सारे डायरेक्शन में। कुछ लाइट रे जो है ना, लैपटॉप के फोटोग्राफिक कैमरा में भी जा रहा है, और वहां जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोग्राफिक कैमरा में। हम लोग यहाँ अब, और वो तुम लोग आराम से देख रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ कि यहाँ जो है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, इस पे सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, और वो लाइट जो है इससे कोलाइड होकर के, इसको स्ट्राइक करके, और फिर किस पे जा रहा है, मिरर पे फॉलन हो रहा है। और फिर मिरर पे जाने के बाद ये देखो, ये अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना करके ये लाइट पे आ रहा है, तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल बी 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। डिफरेंट एंगल से ये देखो, ये और ये, यहाँ भी वही लाइट पे, वही से, और ये कुछ हो सकता है 42 डिग्री हो सकता है, ये 42 डिग्री, हाँ। और ये लाइट रे यहाँ देखो, एकदम ऐसा नहीं कि मिरर के सामने लाइट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मिरर के सामने भी जाएगा, है? तो मिरर के सामने जाएगा तो ये क्या होगा, ये कौन सा डिग्री होगा बोलो तो, मैम कैसा? 90 90 डिग्री 90 डिग्री as it is going perpendicular to the mirror, it will be 90 degree, यहाँ 90 degree,
अब इस एंगल पे जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर, तो फिर रिट्रेस हो जाएगा। जिस रास्ते पर गया, जिस पाथ पे गया और उसी से रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ रिटर्न हो गया, रिट्रेस हो गया। ये कंडीशन है, यही रिफ्लेक्शन होता है। बस इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? फॉर्म हुआ, रियल इंटरसेक्शन तो नहीं हुआ। कहाँ फॉर्म हो रहा है? लेकिन फॉर्म तो हो रहा है। तो ये इमेज फॉर्म हो रहा है, उसको समझने के लिए कहाँ फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, उसको समझने के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इन सभी को क्या करते हैं? बैक डायरेक्शन में क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने स्टडी को स्टडी करने के लिए, कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है। अब चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। ये आ गया यहाँ तक, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये पॉइंट कहाँ, ये सभी का मीटिंग जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे का मीटिंग कहाँ हुआ? बैक, है ना, बैक ऑफ द मिरर। ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, हम लोग लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं अपने पढ़ने के। ये कैसा इंटरसेक्शन है? वर्चुअल इंटरसेक्शन। वर्चुअली वी आर इमेजिनरी इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन, नॉट रियल। ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है रियल नहीं हो रहा, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। और ये लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज देखे तो जैसा कल आप लोग को सब बता रहे थे, प्लेन मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है? जस्ट सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर तो यहाँ पे 3 बार आप लाइट को रिफ्लेक्ट किए मैम, पर तीनों में एक ही जगह बन गया। ऑब्जेक्ट जो है अगर 0.5 सेंटीमीटर पर है, या कुछ 10 सेंटीमीटर लिख लो, 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये इमेज जो फॉर्म होगा मिरर के पीछे कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और बाकी सब कुछ तो तुमको याद ही है कैसा होगा। ऑब्जेक्ट जैसा कलरफुल है वैसा ही कलर का होगा, है ना। मैम 3 बार आप मैम लाइट के रेज को मैम मिरर पे डाली है मैम, और इमेज तो एक ही जगह बन रहा है हाँ, तो सारे मैम, जहाँ पे आप इमेज एस2 एक ही जगह बना। वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, जो रिफ्लेक्शन हुआ, हाँ, वो एक दूसरे को कट किया, वहीं पे इमेज बना। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, ये खुद ही थे। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ खड़े हैं और मेरे ऊपर एक ही दो लाइट रे आ रहा है, ऐसा है? नहीं, नो मैम। पूरा बंडल ऑफ लाइट, पूरा विंडो और डोर पूरा ओपन है, तो बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों लाइट जो है ना, लाइट रे आ रहा है और वो सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है और वो रिफ्लेक्शन हो रहा है और तुम लोग देख रहे हैं। इस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं देवप्रिया, बताओ जल्दी से, हम भूल गए। मैम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ, वेरी गुड, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि शाइनी और स्मूथ सरफेस से नहीं हो रहा, ये रफ सरफेस से। देखो तो बाल का अरेंजमेंट अलग है, ये अलग है, हाँ ये भी रफ ही है, ये अरेंजमेंट अलग है। देखो तो डिफरेंट, तो एक ऑर्डर वे में तो नहीं हो रहा, ऑर्डर मैनर में नहीं हो रहा है। कैसे? डिफ्यूज, जहां जहां जा रहा है वहां से हो रहा है, वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ये प्लेन मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होता है बताओ? मैम प्लेन रिफ्लेक्शन। मैम मैम बोलो। मैम इस रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर से कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑर्डर वे में देखो, सारा सरफेस जो है स्मूथ है और सारा लाइट केवल ये रे का इंक्लाइनेशन डिफरेंट डिफरेंट है। इंक्लाइनेशन हो सकता है डिफरेंट, होगा ना। यहाँ से ये निकल रहा है, ये 30 डिग्री, ऐसे फिर इंक्लाइनेशन
डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइनेशन से वो जो है ना लाइट जो है स्ट्राइक कर रहा है मिरर को। और देखिए ये सभी जो है पास हो जा रहे हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, बिना एक दूसरे को पास हो जा रहे हैं। तो इसको आखिर इमेज से फॉर्म होता है। तो इस इमेज को फॉर्म करने के लिए हम लोग जो है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसी को बैक डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट वे में उसको मिलाते हैं। ये स्ट्रेट देखिए स्ट्रेट मिल गया। और वहीं पे जहां तीन मतलब वर्चुअल मीटिंग हुआ। कैसे हम लोग वर्चुअल मीट तो कर रहे हैं लेकिन कैसा मीटिंग है? रियल Virtual. virtual No, ma'am, meeting. virtual. Our Virtual meeting meeting. is also virtual. In same way, all the light rays, reflected light rays are meeting, but they are meeting virtually, allowing to meet with them. हाँ, हम मिला रहे हैं उसको, लाइन ड्रॉ करके पीछे मिला रहे हैं। और जहां वो कट रहा है मैम कुछ प्लेस है वो इसका S1 का जो है इमेज फॉर्म होगा। ये S1 का इमेज ये S2 पे फॉर्म होगा। हाँ बोलो मैम। हाँ मैम हमारे एटमॉस्फेयर में मैम अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मैम हर डायरेक्शन से सनलाइट आता है मैम। हाँ। तो सारे लाइट का मैम रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना एटमॉस्फेयर में। क्या करता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता ही है। अगर वो अब डिपेंड करता है, ये इंटरसेक्ट कर सकता है, पैरेलल भी जा सकता है। अब जो है अब डिपेंड करता है कि हमारे सामने कौन सा मिरर आ रहा है। ये क्या ये आ रहा है? रुकिए एक सेकंड रुकिए। हम ये देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर आ रहा है मेरे सामने। प्लेन मिरर है कि देखिए इमेज को इसमें भी फॉर्म कर रहा। मेरा इमेज लेकिन उल्टा। एक सेकंड मेरे इमेज को चाहे तुम लोग खुद देखो ना, दिखा नहीं पा रहे हैं। दिख रहा है इसमें जो मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है थोड़ा सा मैम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हल्का दिख रहा है कि मैं उल्टा हो रहा है। हाँ देख लो थोड़ा थोड़ा तुम लोग का भी, लेकिन सब उल्टा दिख रहे हो। देवप्रिया देखो तुम अपने इमेज को कैसे उल्टा दिख रही हो। तुम देखो अनिका अपना देखी क्या इमेज दिख रहा है? मैम उतनी क्लियरली हाँ देखो तो ये देखो ये अब तो ऐसे दिख रहा है, ये कैमरा में जा रहा, मेरा इमेज ऐसे फॉर्म हो रहा है और देखो सारा कुछ उल्टा दिख रहा है। तो ये हाँ सबके घर में स्पून है, सब ले आओ ना स्पून। मिरर लाने का क्या जरूरत है? सबके घर में थोड़ा नया वाला स्पून लाना, उसका सरफेस जो है शाइनिंग है, तो थोड़ा नया वाला स्पून लाओ। हाँ तो देखो सबका कैसा इमेज दिखा बोलो। रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस साइड से मैम। हाँ मैम एक साइड से मैम उल्टा बन रहा और मैम एक साइड से सीधा। हाँ वेरी गुड। देख लो पर ऐसा क्यों मैम उल्टा क्यों बन रहा है? अच्छा वो हम बताएंगे उल्टा कैसे बनता है सीधा कैसे बनता है। अब देखो तुम कहा ना कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये इंटरसेक्शन सेक्शन डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने या फिर ऑब्जेक्ट के सामने कौन सा मिरर है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर जो है इंटरसेक्शन जो है वो होगा। अब देखो तो ये इमेज जो बन रहा है ये देखो उल्टा बन रहा है। कौन वाले पोर्शन में मैम फ्रंट साइड में उल्टा बनता है और बैक साइड में सीधा सीधा बनता है। अब ये वाला जो साइज है ये कैसा केव लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? गड्ढा है ना? यस मैम यस मैम है ना? केव है। तो ये वाला मिरर का नाम है मैम जिस साइड वो कनकेव है उस साइड उल्टा हाँ इसको केव है ना, केव माने गड्ढा।
तो इस मिरर का क्या नाम हो गया? कनकेव मिरर। कॉनकेव। कनकेव मिरर। हाँ, और कनकेव मिरर। अब इस साइड में क्या है? वेक्स। वेक्स मतलब मैम उठा हुआ, कन्वेक्स। जो गुम्बद कहते हैं मंदिर या मस्जिद में, ये उठा हुआ साइड होता है, इसका नाम होता है वेक्स, VEX, वेक्स। हाँ, तो उसी तरह से ये उठा हुआ है ना, वेक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, उठा हुआ गुम्बद। हाँ, तो इधर जो मिरर है, मिरर। इस मिरर का क्या नाम है? कन्वेक्स मिरर, है ना। और देखो दोनों में इंटरसेक्शन कन्वेक्स मिरर। डिपेंड करता है, एक ही स्पून है लेकिन एक तरफ वेक्स साइड है, तो कन्वेक्स मिरर को फॉर्म कर रहा है। इसमें इमेज का फॉर्मेशन देखो अलग है, और इसमें इमेज का फॉर्मेशन अलग है ना। क्यों है? अब Yes, हम लोग ma'am. पढ़ेंगे इसको, हाँ आगे पढ़ेंगे। ये अभी देख लो, जो जिस टॉपिक पे हो उसको अच्छे से जान करके। तो ये इन वर्चुअल मीटिंग, हाँ, तो image is from virtual image. When the virtual meeting of the reflecting rays are taking place, the image formation is also virtual. When the real intersection of the reflected ray takes place, then the image will form real. तो प्लेन मिरर में कैसा मीटिंग हो रहा है? बोलो, कैसा हो रहा है? वर्चुअल मीटिंग, है ना। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, तो इमेज कैसा है? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, रियल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये कैसे बनता है? कनकेव और कन्वेक्स पढ़ेंगे हम लोग। अब उसके पहले जो पढ़ना है उसको पढ़ लो, तो इसको पढ़ोगे। अब नाउ मल्टीपल इमेज, कल जो उदित बता रहे थे, तो है ना, वो आ गया। आगे आगे चलोगे तो फिर कैसे होगा? मल्टीपल इमेज में क्या है? मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। It is interesting to note that rays reflected by one mirror can get reflected again if there are different mirror are present there. जैसे हम लोग जाते Yes, हैं ma'am. पार्लर में, है ना, पार्लर में जाते हैं तो एक मिरर फ्रंट में रहता है ना, और बाल कितना Yes, कट ma'am. की पार्लर वाली, तो उसको दिखाने के लिए बैक में भी मिरर रहता है, और उस जो बैक वाला पोर्शन का इमेज जो बनता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आता है, सामने आता है ना। सभी बॉयज हो या गर्ल्स, Yes, ma'am. सभी देखे हो ये कंडीशन। Ma'am. हेयर कटिंग के Ma'am, लिए मैं- जाते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम जब मेरा बाल जब पहली बार कटा, जब मेरा बाल दूसरी तीसरी बार कटा था मैम, मैं घर आ गया मैम। आई होप मेरी पापा या मम्मी काटे थे मैम। मुझे लगा मैं पीछे का बाल कैसे देखूं, बार बार मिरर पीछे मुड़ रही थी मैम। फिर मैम पापा का एक मिरर था, उसको सामने उठाए, सर के ऊपर रखे, पीछे जो मिरर था ड्रेसिंग टेबल वाला, उस मिरर में देखे, फिर देखे मैम, फिर ऊपर देखे, फिर देखे बाल कटा है, अच्छा कटा है। हाँ मैम, अगर मैं सैलून में जाता हूँ तो मैम, अगर एक मिरर सामने होता है और एक पीछे, तो हाँ। मैम सामने वाले मिरर में एकदम पीछे तक जाता है, तो मैम बोलता मैम मेरे कितने जुड़वे आ गए हैं। हाँ, कितने जुड़वे आ गए, वही मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है। हाँ, और एक ये मल्टीपल इमेज का यूज करके एक टॉय भी बनाते हैं, जिसको कहते हैं कैलिडोस्कोप। हाँ, मैम हाँ मैम मेरे पास ऐसा ये मैम एक कैमरा है मैम, मेरे पापा का फोन है मैम, उसके कैमरा में एक कैलिडोस्कोप है मैम, इससे मैम बहुत सुंदर इमेजेस बनता है। अच्छा अपराजिता, हम तो पहले बच्चों से बनवाते थे, तुम लोग लॉकडाउन में अभी घर से क्लास कर रहे हो, इसको बना सकते हो। हम तो बनवाते हैं हर एक साल, जो है ना, बच्चे स्कूल में बनाते हैं इसको, कैलिडोस्कोप को। तो इसके लिए क्या चाहिए? बस 3 पीसेस मिरर का, किसी भी मिरर वाला जो ये जो बनाता है ना, उसके शॉप पे जाना है, जो फ्रेम मेकिंग करता है, फोटोग्राफ में फ्रेम बनाता है, उसके पास कटिंग होता है ये। तो ये देखो 3 पीस कैसा भी ले लो, स्क्वायर शेप का होना